السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حکومت کے مشیر ہرکارا وینوگوپال راؤ نے سرمایہ کاری جمع کرنے کے مقصد سے حیدرآباد کے دورے کے موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شمشاباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی حیدرآباد پہنچ چکے ہیں۔ شمشاباد ہوائی اڈے پر ایم پیز، ایم ایل ایز اور پارٹی رکن نے پرتپاک استقبال کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا امریکہ اور جنوبی کوریا کا دورہ کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے غیر ملکی دورے کا مقصد سرمایہ کاری ہے۔ وزیر اعلیٰ آج شام کو کوکاپیٹ میں گانز کے نئے کیمپس کا افتتاح کریں گے۔ ایس ایس پی امتیاز حسین نے ان کی غیر معمولی لگن اور مثالی خدمات پر صدارتی تمغہ برائے امتیاز پی ایس ایم حاصل کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قاضی گنج میں ترنگا ریلی میں ہیڈ تحصیلدار بھی شامل ہے۔ علاقے میں ریونیو انتظامیہ کے سربراہ کے طور پر ہیڈ تحصیلدار مختلف محکموں کی کوششوں کو مربوط کرنے اور ریلی کی کامیابی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہیڈ تحصیلدار کی شمولیت میں یہ شامل ہو سکتا ہے شرکت اور مشغولیت کو یقینی بنانے کے لیے دیگر محکموں اور تنظیموں کے ساتھ رابطہ کاری، ریلی کے لیے ضروری اجازت اور منظوریوں کی سہولت فراہم کرنا، ریلی کے لیے وسائل اور مدد فراہم کرنا جیسے کہ پنڈال، ساؤنڈ سسٹم اور سیکیورٹی، شہریوں کو ریلی میں شرکت کے لیے ترغیب دینا اور مختلف چینلز کے ذریعے ایونٹ کی تشہیر کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ ریلی بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی اور پرامن طریقے سے منعقد کی جائے۔ ہیڈ تحصیلدار کی شمولیت سے قاضی گنج میں ترنگا ریلی انتظامی مشنری کا فائدہ اٹھا کر اپنے اثرات کو بڑھا سکتی ہے اور ایک وسیع تر سامعین تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی ریل ہے۔ سائڈ میں آؤ، سائڈ میں آؤ۔ سوری جھنڈے کو ایسے رکھو، سائڈ میں۔ سر فیٹ سر۔ آئی سی پولیس چوکی جواہر ٹنل کی طرف سے مڈل اسکول لوئر مونڈا سے زبرا کراسنگ تک 24 بلین سی آر پی ایف کے ساتھ فلیگ ریلی کا انعقاد عمل میں آیا۔ اے آئی ایم آئی ایم کاروان کے ایم ایل اے کوثر محی الدین نے عوامی شکایت کے بعد معراج کالونی اے آئی ایم آئی ایم آفس میں مستحقین میں سی ایم آر ایف کے چیک تقسیم کیے ہیں۔ اس دوران ایم ایل اے کے ساتھ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے کارپوریٹر اور اے آئی ایم آئی ایم پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکنان موجود رہے۔ امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر طالب علموں کے ذہنوں میں قومی جذبات کو ابھارنے کے لیے آج متھو کورو گاؤں منڈلم میں زیڈ پی ہائی اسکول کے طلباء کے ساتھ ترنگا یاترا کا اہتمام کیا گیا ہے۔
इत्तला दी जाती है कि मस्जिद साजिद मजीद की मीटिंग कमेटी कोखलागुड़ा हनुमाकुंडा वरंगल ने जनाब असदुद्दीन ओवैसी मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन टीजी वक्फ बोर्ड के सामने मुदाखलत के लिए नुमाइंदगी की है। मस्जिद का कहना है कि ये ज़िला इंतजामिया की जानिब से नाला अराजी के तहत आ रही है। मुअज़्ज़िज़ीन वक्फ बोर्ड ने फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के टास्क फोर्स टीम को मज़कूरा मस्जिद के मुकाम के मुआयने के लिए रवाना कर दिया है। इसी मुनासिबत से टास्क फोर्स टीम ने मुकामी मुसलमानों और मैनेजिंग कमेटी के अरकान और मुअज़्ज़िज़ एमएलए हनुमाकुंडा से मुलाकात की है और जिला कलेक्टर से भी इस मामले पर तबादला ख्याल किया है और मस्जिद को इन्हदाम के मंसूबे को रोकने और मुतबादिल पर गौर करने की दरख्वास्त की है। आबपाशी और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव के इस दावे की तरदीद की है कि प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल हो चुका है और इसे मुज़हिका खैस करार दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बीआरएस हुकूमत के तहत सिर्फ 39% काम मुकम्मल हुआ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 15 अगस्त को सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप्स को ऑन करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया है कि ये प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2026 तक मुकम्मल तौर पर काम कर दिया जाएगा। मंसूबे के इफ्तिताही इंतजामात और दीगर पहलुओं पर तबादला ख्याल के लिए मंगल को जल सोधा में एक जायजा मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस पार्टी पर तनकीद करते हुए सवाल किया है कि मख्तस करदा 18,231 करोड़ रुपए से सर्फ और 7,230 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 90% प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल हो सकता है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो ज्यादा कमीशन हासिल करने के लिए वक्त से पहले मोटरें लगा रही है, हालांकि ड्राई रन कभी भी नहीं करवाया गया है। उन्होंने उन दावों को भी मुस्तरद कर दिया है कि सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC से जरूरी इजाजतें हासिल की गई थी, ये कहते हुए कि ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गई थी। सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और जवाब गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए मुकम्मल तौर पर मंजूर शुदा है। दरियाए गोदावरी से 67 TMC पानी हासिल करेगा, जो कांग्रेस हुकूमत की एक कामयाबी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि सीताराम प्रोजेक्ट को असल में राजीव सागर और इंदिरा सागर प्रोजेक्टों के तौर पर कांग्रेस हुकूमत के दौर में तस्वुर किया गया था। उन्होंने बीआरएस पर इल्जाम लगाया है कि क्रेडिट का दावा करने वाले और इस हकीकत को छुपाने के लिए प्रोजेक्ट का नाम तब्दील करके सीतारामा रख दिया गया है। दरअसल प्रोजेक्ट जिनकी लागत का तखमीना 3,500 करोड़ रुपए है, इजाफी 1,500 करोड़ रुपए से मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बीआरएस हुकूमत की लापरवाही की वजह से सैराब शुदा जमीन में यकसा इजाफे के बाद बगैर लागत में 18,000 करोड़ रुपए का नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर रियासत में आबपाशी के निजाम को नजरअंदाज करने और मख्तस फंड्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने निशानदही की है कि 10 सालों में 1.81 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद पिछली हुकूमत ने नए रकबे को सैराब करने में नाकाम रही है। और इसके अलावा हरीश राव अपने चचा केसीआर से खम्मम के रूह के बारे में पूछे, जहां बीआरएस पिछले 3 इंतखाबात में सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उन्होंने खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में बीआरएस का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में तनहा जीत कर इनके अपने असर रसूख और अपने शागिर्द की जीत से मंसूब किया जाएगा। उन्होंने हरीश राव को खम्मम के लोगों को कम समझने से खबरदार किया है। जगतियाल जिला के मेटपल्ली मंडल के पेडापुर मौजू में मौजूद गुरुकुला स्कूल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर पूनम प्रभाकर दौरा किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने साथी तलबा से तालिबे इल्म गिनातिया और अनिरोध की मौत की वजूहात के बारे में पूछा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने गुरुकुला स्कूल में तलबा और वालिदैन से मुलाकात भी की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर पूनम प्रभाकर ने गुरुकुला स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल महिपाल रेड्डी से 2 तलबा की मौत और 4 तलबा की बीमारी से मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इंचार्ज प्रिंसिपल से पूछा है कि क्या हर माह तलबा की सेहत की जांच की जाती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गुरुकुला स्कूल में सहूलियात, अमला और ड्यूटी नर्स के बारे में दरियाफ्त किया। आंसू बहाते तलबा के वालिदैन को तसल्ली दी। యూనిఫామ్ కానీ అన్ని సక్రమంగా ఈవెన్ టాయిలెటరీకి సంబంధించినటువంటి నిధులు కానీ అన్నిటిని కూడా సక్రమంగా వాళ్ళకి టైంకి వచ్చేటట్టుగా ఈవెన్ డైట్ బిల్స్ కూడా సక్రమంగా నిధులు వచ్చేటట్టుగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు వాటన్నిటిని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో
ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాలుగా ఈ పాఠశాలన్నీ బాగుంటాయి. బాగా చేసుకుందాం. తల్లిదండ్రులందరూ కూడా దీన్ని ముందుకు తీసుకొని పోయే కార్యక్రమంలో ధైర్యంగా పిల్లలందరికీ నమ్మకం కల్పించి చెప్పి వెళ్ళవలసిందిగా కోరటమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మంత్రిమండలి సమావేశంలో స్పష్టంగా కొన్ని కోర్స్ చేయించి స్టార్ట్ చేయించాం సర్టిఫికేషన్ అండ్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆ ఓల్డ్ కంట్రీ ఎవరు లేదు సార్. ఇక్కడ కూడా మేము हर घर तिरंगा रैली आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली जाने वाली लोगों को हिंदुस्तान की आज़ादी के 77वें साल के मौके पर परचम कुशाई लहराने की तरगीब दी जा सके। यौम आज़ादी से कबल जिला यूथ सदर BJYM अनंतनाग श्री बुरहानुद्दीन और BJYM की क़ियादत में जिला जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग श्री शबीर आह गनी और BJM के जिला नायब सदर अनंतनाग श्री नाग से मतन और हर घर रैली निकालने की इजाजत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC, ST, BC और अक़लियती मोहम्मद अली शबीर को मंगल के रोज़ अनवर उलूम कॉलेज मल्लेपल्ली में अक़लियती इदारों की इंतज़ामिया ने मुबारकबाद दी है। ये तक़रीब रियासती हुकूमत बिलख़ुसूस चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी और शबीर अली से इज़हार तशक्कुर के लिए मुनाक़िद की गई थी, जो अक़लियती तालीमी इदारों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई कोशिशों के लिए है। उन कोशिशों में उन्हें डिग्री, ऑनलाइन खिदमत, तेलंगाना दोस्त के अमल से मुश्तना करना और अक़लियती पेशा वाराना कॉलेजों में तलबा के दाखिले में इजाफे को मंजूरी देना शामिल किया गया है। आज राजीव गांधी अमर ज्योति यात्रा, जो कि तमिलनाडु से दिल्ली के रास्ते तेलंगाना रियासत से शुरू हुई है, का संगारेड्डी हल्के में एक बहुत बड़ी रैली के साथ जगारेड्डी TPCC के वर्किंग सदर ने खैर मकदम किया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने अडानी से भी इल्जामात के हवाले से कांग्रेस पार्टी के दोहरे मेयार पर सवाल उठाया है। खास तौर पर हैंडबर्ग रिपोर्ट के तनाजुर में उन्होंने अडानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मुल्कगीर मज़ाहिरों और तेलंगाना में इसके इक़दामात के दरमियान तजाद की निशानदही की, जहां इस कंपनी का कांग्रेस ज़ेर क़ियादत हुकूमत की तरफ से खुले हथियारों से खैर मकदम किया जा रहा है। KDR ने वाज़े मुनाफ़िक़त के लिए राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए पूछा है कि क्या कौमी कांग्रेस के लिए एक पॉलिसी है और तेलंगाना कांग्रेस के लिए दूसरी। एक तरफ आप अडानी से भी इल्ज़ामात पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC का मुतालबा कर रहे और कांग्रेस की क़ियादत में मुल्कगीर एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी कांग्रेसी वज़ीर आला अडानी के लिए सुर्ख कालीन बिछा रहे हैं और दरवाजे खोल चुके हैं। कंपनी और यहाँ तक के बिजली की तकसीम का निज़ाम अडानी को सौंपना KDR ने तबसरा किया है। उन्होंने राहुल गांधी को मजीद चैलेंज किया है कि वो वाज़ेह करे कि कांग्रेस कैसे दावा कर सकती है कि अडानी मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी तेलंगाना को होने वाले फायदे का जवाब पेश करे।
KTR نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے لیے مبینہ طور پر نقصان دہ چیز سے اکیلے تلنگانہ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ KTR نے راہل گاندھی سے براہ راست سوالات کیے، یہ پوچھا کہ کیا ان کے پاس تلنگانہ میں اڈانی کی توسیع کو روکنے، کانگریس چیف منسٹر کی غلط حرکتوں کا مقابلہ کرنے یا پھر ریاست میں اڈانی کو روکنے کا اختیار ہے۔ کیا راہل گاندھی چیف منسٹر ریونت ریڈی پر لگائے گئے الزامات تلنگانہ میں اڈانی کو ختم کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ کیا راہل گاندھی میں اتنی طاقت ہے؟ KTR نے استفسار کیا۔ انہوں نے کانگریس پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ اڈانی کے خلاف اپنی مبینہ لڑائی میں اخلاق کا فقدان ہے، اور اس کے علاوہ جس نے دہلی میں پارٹی کے اقدامات اور تلنگانہ میں اس کے نقطہ نظر کے درمیان تضادات کو اجاگر بھی کیا ہے۔ KTR نے مشاہدہ کیا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے اڈانی کے ساتھ خفیہ معاہدوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس تلنگانہ کو اڈانی کے حوالے کرنے کی کوشش کرتی ہے تو عوام خاموش نہیں رہے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ BRS پارٹی تلنگانہ کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ کانگریس حکومت نے تعلیمی انقلاب کے لیے کالجوں کو اجازتیں اور سیٹوں میں اضافہ کیا۔ محمد علی شبیر مشیر حکومت تلنگانہ نے یہ بات کہی ہے۔ ان 1 ویک کے اندر سارے کالجز کے ان کے اس کو کمپلیٹ کر کے بھیجا کے بولا ڈرو مت، کانگریس کی سرکار ہے، یہ آپ کی سرکار ہے، یہ مسلم کرسچن دلت کے ووٹوں سے بنی ہوئی سرکار ہے، آپ کو بالکل اقدام ہے کہ جو ریونت ریڈی صاحب نے بلینکٹ پرمیشن دے دی کہ جتنے مائنورٹی کالج ہے پورے 120 سیٹوں بڑھا دو جاؤ، 1 2 3 نہیں۔ میں ایکچوئل کچھ ہی ریپرزنٹیشن آئے تھے بھیجایا تو انہوں بولے شبیر بھائی کئی کو 1 2 پورے لے لو، جتنے انجینئرنگ والے جو لینا چاہ رہے لے لو، چل۔ ایسا بلینکٹ آرڈر شاید ہی کبھی ملا ہوگا کہ ون سائڈ آپ لوگ آن لائن میں کہ اسکالرشپ جو اس میں ہمارے بچوں کو نہیں آ رہی، جس سے آن لائن میں یعنی آف لائن ہو جانے کے بعد دوست سے مائنارٹیز کو تو ایکسکلوڈ کر دیے، لیکن جو ایکسکلوڈ ہوئے وہ گورنمنٹ کے بینیفٹس نہیں مل سک رہا۔ ضرور میں پوری کوشش کروں گا حکومت کے سامنے یہ تمام چیزیں ذرا مجھے صحیح طریقے سے آپ لوگ ریپرزنٹیشن بنا کے دیں گے تو میں ان کو بھی انکلوڈ کر کے یہ جس طریقے سے والے پریشان ہیں۔ بادشاہ محی الدین صاحب تو بیچارے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ شبیر صاحب اتنے 22 کروڑ کے قریب ہمارے فیس ریمبرسمنٹ وغیرہ اسکالرشپس کے پرابلم سے سب کے ہی ہے۔ کامرس کا 15 اگست کو ختم ہو جائے گا اور چھوٹے ہونے کے بعد فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں ضرور اپ ٹو 75% تک ہم لوگ آپ لوگوں کے پرانے ڈیوز جتنے ہیں اس کو کلیئر کر کے اس کے بعد CM صاحب نے یہ کہا کہ اس کے بعد یہ انسٹیٹیوشنز والوں کو مت ستاؤ، ان کو گرین چینل میں رکھو، سال کوئی ہمارے پیچھے پھرنا نہیں، اور یہ لوگ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، بچوں کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی بولتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ دی تو ہم دیں گے نا، تو یہ تمام پرابلمس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو گرین چینل میں رکھنے کا CM صاحب نے ارادہ بنا لیا ہے، اور نیکسٹ ٹائم ضرور، کیونکہ CM صاحب کو مجھے کرے ہیں، آپ لوگ بہت جلد میں CM صاحب سے بھی ٹائم دلا کر یہ 3-4 مسائل کے ساتھ آپ لوگوں کو انٹریکشن میٹنگ میں لگاؤں گا۔ یہ بہترین آئیڈیا ہے، اور ایک نئی بات بھی ہمارے شاہ عالم نے کہا، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، انہوں نے بتا دیے کہ میں نے صرف 1 ویک کے اندر مسلم لا کالج کے لیے، کیونکہ بھائی ڈاکٹر انجینئر اب بہت ہو گیا، اب تم پہلے لائرس کو پیدا کرو، وکلا کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو، تو اس کے اوپر کیونکہ مرحوم وزارت رسول خان صاحب کی ایک ہی رہتی تھی، دواخانے کا پولو میں ہے، میں ملنے گیا شبیر وہ میڈیکل کالج کیا ہوا بولے، ہاتھ دو بولے، ہاتھ دیا میں، وہ کیا ہوتا میں رہتا نہیں رہتا، مگر وہ کالجز ہونا، یونیورسٹی ہونا، بچوں میں 25,000 بچے پڑھنا میرے کالجوں میں۔ میں بولا رہے میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا، میں پہلے آپ کا صحت کا خیال رکھو، اللہ صحت دے دے گا، کچھ بھی ہوگا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، وہ زندگی دیا موت بھی وہی لے گا، مجھے کالج چاہیے۔ تو بتاؤ کہ ان کا جو ارادہ تھا جس کی وجہ سے آج 5 میڈیکل کالج چلانے والے ہندوستان کے اندر کوئی نہیں ہے، وہ واحد فیملی ہے جن کے 5 ہیں، شادان، VRK، نمرا اور آیان، شاہ چالو نہیں ہوا شاید، پرمیشن تو میں نہیں، پرمیشن تو میں نے 5 میڈیکل کالج کا پرمیشن دیا، فاطمہ 6،
तो हमारे राष्ट्र के लिए इस पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम क्रिश्चियंस दलित भाई वन साइडेड 95% वोटिंग करे कि जहां इंडिया अलायंस है वहां सारे लोगों को जिताए, नजदीक के करीब आ गए, जिसकी वजह से आप देखें कि मुल्क के अंदर 10 साल के अंदर काफी जेपीसी का हमने डिमांड किया। पहले जेपीसी रफाइल के ऊपर जो जहाज था उसके ऊपर डिमांड करे, 2 महीने बस सड़कों पे फिरे, रोडों पे फिरे, पार्लियामेंट का बैकआउट बन, मोदी जी नहीं चुके। फिर उसके बाद आपके हेडनबर्ग के ऊपर अदानी के ऊपर करे, वो भी 2-3 महीने सारे अपोजिशन बैठे, मोदी जी को चुमटी भी नहीं काटी। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से आज इंडिया अलायंस का एक झटका, आज मोदी जी आसमान से उतर के नीचे आकर ये बोलना पड़ा कि यस जेपीसी के हम दे रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्त मिल गया है। तो ये अपोजिशन की ताकत होती है, ये जमहूरियत की होती है। तो आप लोगों की वोट की ताकत, आपकी यूनिटी से छोटे छोटे जमातों पे भरोसा करे बगैर बड़े जमातों पर इत्तेहाद के ऊपर भरोसा करे, जिसकी वजह से हम देखें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये वक्त बिल का गया है। बात लंबी हो गई है, तो मैं ऑल मुस्लिम कॉलेजेस एंड क्रिश्चियंस कॉलेजेस, बीसी एससी सबके लिए मैं हमारे दरवाजे खुले हैं। एनी मोमेंट जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो आप लोग आ सकते हैं। गवर्नमेंट आपकी है, आपके वोटों से बनी हुई है और हम आपके साथ हैं। आपका वेलफेयर, आपकी तरक्की ये हुकूमत की तरक्की है। हमारी सोच आपको आगे बढ़ाना है, सबके साथ सबके विकास दूसरों का स्लोगन है, ये हम परमानेंट चाहते हैं। आपका विकास हो और आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की ख्वाहिश है। खुदा हाफिज, जय हिंद। वज़ीर ज़राअत ने हिदायत दी है कि श्रीकाकुलम शहर के इर्द गिर्द मजूजा और आर आउटर रिंग रोड की तामीर को अव्वलीन तरजीह दी जाए और 1 साल के अंदर काम शुरू करने का मंसूबा बनाया जाए। उन्होंने मंगल को श्रीकाकुलम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देवादिया, माइनर्स इंदिरा ग्राउंड और कोवाडा वगैरह के जिला अहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ORR के 542 एकड़ की जरूरत है। ये तजवीज़ किया गया है कि ORR जिला मरकज के इर्द गिर्द तामीर किया जाएगा। 36 किलोमीटर लंबा और 200 फीट चौड़ा 18 गांवों को जोड़ता है। श्रीकाकुलम कॉरपोरेशन को कहा गया है कि वो मौजूदा दफ्तर की इमारत की जगह एक तिजारती कॉम्प्लेक्स के साथ एक नया दफ्तर तामीर करे। डे नाइट चौराहे से 7 रोड चौराहे तक सड़क के बीचों बीच लगे पौधों को फौरी तौर पर हटा दिया जाए और खुशी देने वाले पौधे लगाए जाए और नागावली नदी के सब सरफेस डाइक से रैली वेदी तक पुश्ते की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए। जंगी बुनियादों पर उन्होंने मशवरा दिया है कि मैकेनिज्म को मुकामी MLA गोंडो शंकर के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मीठी के मुताबिक काम शुरू किया गया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि मीठी बट्टी के 7.5 किलोमीटर के सीवरेज ट्रीटमेंट और प्लांट के काम के लिए फंड्स की फौरी फराहमी शुरू की जाए ताकि शहर में पानी खड़ा ना हो सके। जैसा कि अहदेदारों ने बताया है कि माजी में सिर्फ 20% काम हुए थे। वो फौरी तौर पर तखमीनों पर नजरसानी करना चाहते हैं और टेंडर्स तलब करना चाहते हैं। ये तजवीज़ है कि डे नाइट से RTC बस स्टैंड तक सड़क को 80% तक जोड़ा किया जाएगा और बालाघाट तक तौसी कामों में नुकसान उठाने वालों को TDR दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पंत्रोवलासा और पपडापू में ताज़ा पानी की फराहमी के कामों के लिए 24 करोड़ रुपए से काम शुरू किया जाएगा और रिजर्व मुकामात पर पार्क्स कायम किए जाएंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।